children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is pollution. Pollution. In broad terms, pollution may be defined as the presence of or introduction of a change in physical, chemical or biological characteristics of air, water and land that may or will harmfully affect the human lives of desirable species, living conditions or will deteriorate the raw material resources. तो बच्चों, पॉल्यूशन का क्या मतलब है? अगर कुछ पल्यूट हो जाता है तो वो गंदा हो जाता है. मतलब अगर एयर, वाटर या लैंड में से किसी भी चीज़ में गंदगी आ जाए तो वो पल्यूटेड कहलाएगी. Pollutants. The substances, chemicals or factors which cause adverse effect on the natural quality of any constituent of environment are called pollutants. They are generally byproducts or waste products. तो बच्चों, कोई भी substances या फिर chemicals जो हमारे environment को गंदा करते हैं उन्हें हम pollutants बोलते हैं. Types of pollution. The four main types of pollution are air pollution, water pollution, noise pollution and soil pollution. Let us study about them in brief. तो बच्चों, हमारे पास 4 types के pollution हैं. आइए एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं. Air pollution. You have studied that air is a mixture of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, etc. If due to any reason there is a disturbance in the concentration of various gases in air, it leads to pollution which is harmful to various life forms and environment. तो बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एयर एक गैसेस का मिक्सचर है. यदि उन गैसेस में कुछ गंदगी आ जाए तो वो पल्यूट हो जाती है. इससे एयर पल्यूट होती है एंड एयर पल्यूशन कॉज होता है. सोर्सेज ऑफ एयर पल्यूशन. मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एयर पल्यूशन आर रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज which are result of modern lifestyle. Added to this are also natural causes like the volcanic eruptions, atmospheric reactions, etc. Let us study about some of these. तो बच्चों, एयर पल्यूट होने के सोर्सेज क्या होते हैं? आइए उन्हें देखते हैं. Burning of fossil fuels. Fossil fuels include petroleum and coal. Burning of coal produces a lot of smoke and dust, whereas burning of petrol mainly produces sulfur dioxide. In addition to these, the pollutants include carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen oxides, hydrocarbons, particulate matter and traces of metals. तो बच्चों, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को जैसे कि कोल एंड पेट्रोल को अगर बर्न करेंगे तो उससे हमारा इन्वायरमेंट एंड एयर बहुत ज़्यादा पल्यूट हो सकता है. स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स. व्हेन पेट्रोल इज बर्न्ड इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एल्डिहाइड्स, सल्फर कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स and ammonia and carbon particles. Incomplete combustion of petrol produces carbon monoxide and carbon particles. Today, vehicular pollution is a major threat to the environment. The smoke released from the exhaust pipes of various vehicles can cause cough, nausea, irritation of eyes, etc. तो बच्चों, हमारे जो व्हीकल्स हैं जैसे कि कार, स्कूटर्स या बाइक्स, इनमें से भी बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है जो हमारी एयर के लिए बहुत हार्मफुल है. उससे कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो कि एयर को पल्यूट करते हैं. इंडस्ट्रीज आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. सम ऑफ द इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर प्लांट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज,
Steel plants etc. pollutes the air in a big way. तो बच्चों एयर पोल्यूशन का एक मेन कॉज इंडस्ट्रीज भी हैं. इंडस्ट्रीज से जो स्मोक रिलीज होता है वो एयर में मिक्स होकर उसे पोल्यूट कर देता है. इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. ग्लोबल वार्मिंग. द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर of the Earth's atmosphere believed to be due to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, chlorofluorocarbons and other pollutants is called global warming. तो बच्चों एयर पोल्यूशन के कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग. जब टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है. दिस विल हैव द फॉलोइंग इफेक्ट्स. डिस्टर्बेंस इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन. चेंज इन क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स. तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस हो सकती है एंड जगहों का क्लाइमेट भी फ्लक्चुएट हो सकता है. मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप्स एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन सी लेवल्स. This will submerge parts of coastal cities like Kolkata, New York, London and other major cities. तो बच्चों अगर स्नो कैप्स मेल्ट हो जाएंगी तो सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा जिससे बहुत सारे कोस्टल एरियाज इफेक्ट हो सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन. Pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxides react with water in the atmosphere to produce sulfuric acid and nitric acid. These acids come down along with the rain. This phenomenon is called acid rain. तो बच्चों अगर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर से और सल्फर एसिड एंड निट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो बारिश के साथ एक एसिड भी फॉल होगा जिसे हम एसिड रेन कहते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. इट हैज़ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट. इट अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स बाय डैमेजिंग द लीव्स. इट एंटर्स द ग्राउंड एंड रिवर वाटर विच कैन प्रूव हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसऑर्डर्स. तो बच्चों एसिड रेन हमें बहुत तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है जैसे कि अगर वो ट्रीज़ पे गिरेगी तो उनकी लीव्स ख़राब हो सकती हैं. अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं एंड तब एसिड रेन हो रही है तो हमें स्किन डिजीज़ एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. एंड अगर वो ग्राउंड पे एंड रिवर वाटर में एंटर कर गई तो एक्वेटिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा. मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन. हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन. टॉल चिमनीज शुड बी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्रीज फॉर वर्टिकल डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट्स. तो बच्चों जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें टॉल चिमनीज लगाई जानी चाहिए. बेटर डिजाइंड इक्विपमेंट एंड स्मोकलेस फ्यूल्स मस्ट बी यूज्ड इन हर्ट्स, इन इंडस्ट्रीज एंड एट होम्स. तो बच्चों कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करे जाने चाहिए जिनमें स्मोक बहुत कम हो जिससे हम लोगों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड, सोलर एनर्जी, ओशन करंट्स मस्ट बी टैप्ड टू फुलफिल एनर्जी नीड्स. तो बच्चों हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी यूज़ करना चाहिए. वाटर पोल्यूशन. When water sources are polluted, it causes water pollution. Both fresh and salty water can get polluted. Sometimes underground water also gets polluted. Pollution of water is due to both natural and man-made factors. For example, storms often cause soil and other particles to dissolve in water. This water gets polluted. It cannot be used for drinking and cooking. Water pollution. तो बच्चों वाटर पोल्यूशन तब होता है जब वाटर गंदा हो जाता है. वो बोथ नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज से हो सकता है. जैसे कि अगर कभी कोई स्टॉर्म आता है
तो मिट्टी उड़ के पानी में चली जाती है, जिससे पानी गंदा हो जाता है। फिर हम उस पानी को पीने के लिए या कुकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वाटर पोल्यूशन इज़ यूजुअली कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डंपिंग वेस्ट्स इंक्लूडिंग harmful chemicals from factories, dumping household wastes, leakage from oil tankers। तो बच्चों, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी वाटर पल्यूट हो सकता है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ का वेस्ट पानी में डाल देना, घर का वेस्ट पानी में डाल देना, एंड अगर ऑयल टैंकर्स लीक हो जाए तो भी हमारा पानी पल्यूट हो सकता है। वाटर पल्यूशन कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव in polluted water. It also makes people sick. Jaundice, gastroenteritis and typhoid are caused by drinking polluted water. तो बच्चों, जो polluted water होता है वो plants and animals के लिए भी बहुत harmful होता है, and उससे हम humans को बहुत सारे diseases भी हो सकते हैं। How to check water pollution? हम water pollution कैसे check कर सकते हैं? Following measures can be adopted to check water pollution. Strict legislation should be enacted over industries to treat wastewater before being discharged into water bodies. तो बच्चों, इंडस्ट्रीज़ अपना वेस्ट सब पानी में बहा देती हैं। हमें उन पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे पहले वो अपना वेस्ट पानी में बहा दें। सीवेज pollutants should be subjected to chemical treatment to change them into non-toxic substances। तो बच्चों, जो सीवेज pollutants होते हैं हमें उनको केमिकली ट्रीट करके नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। सॉइल पोल्यूशन, द पोल्यूशन ऑफ सॉइल और लैंड is caused when harmful substances are released into the soil or accumulate on the land. The main sources of soil pollution are solid wastes such as garbage, refuse from mines, refuse from forests and agriculture. Pollution makes the soil infertile. It harms the organisms living in the soil. तो बच्चों, सॉइल या लैंड कैसे पल्यूट होता है? हम अपने घर का कूड़ा अगर लैंड पे फेंक दें तो वो पल्यूट हो जाएगा। अगर माइंस के रिफ्यूज़ एंड फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर के रिफ्यूज़ भी ऐसे ही फेंक दिए जाए तो भी लैंड पल्यूट हो सकता है, जिससे कि जो ऑर्गेनिजम्स सॉइल पे या लैंड पे रहते हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, एफॉरेस्टेशन शुड बी एनकरेज्ड, क्रॉपिंग टेक्निक्स शुड बी इम्प्रूव्ड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वीड्स, स्पेशल पिट्स should be selected for dumping wastes. Use of pesticides and fertilizers should be minimized and judicious. तो बच्चों, हम सॉइल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमें कम पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए, एंड अगर हमें कूड़ा डंप करना है तो उसके लिए स्पेशल पिट्स बनानी चाहिए। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस इज डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड्स being dumped into atmosphere to disturb the unwilling ears. It affects our physiological and mental health. A sound of over 115 decibels is harmful for ears. तो बच्चों, नॉइस वो होता है कुछ ऐसी आवाज़ें जो हमें सुनने में पसंद नहीं होती या जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। कोई भी आवाज़ जो 115 डेसिबल्स से ऊपर होती है वो हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल है। सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, द मेन कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर कार एंड बस हॉर्न्स, एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर्स, मशीन्स इन फैक्ट्रीज, लाउड म्यूजिक। व्हीकल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो बच्चों, अगर हम देखेंगे नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं, बसेस एंड कार के हॉर्न्स से जो आवाज़ आती है, या फिर जो लाउड स्पीकर्स में से आती है, या बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं तो वो बहुत आवाज़ करती हैं। ये सारे सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है? नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज एंग्जाइटी,
reaction of stress and tension. It may also produce fright and even heart failure to heart patients. तो बच्चों, नॉइस पोल्यूशन से हार्ट पेशेंट्स को हार्ट फेलियर हो सकता है एंड हमें उससे स्ट्रेस एंड टेंशन भी हो सकती है. इट इंटरफेयर्स विद ह्यूमन कम्युनिकेशन. हम किसी से आपस में बातचीत करें एंड पीछे बहुत नॉइस हो तो वो हमें बहुत इफेक्ट करता है. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नॉइस पोल्यूशन लीड्स टू डेफन आवर ईयर्स और परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग. तो बच्चों, अगर बहुत टाइम तक हम बहुत लाउड नॉइस सुनेंगे तो उससे हम बहरे हो सकते हैं या फिर परमानेंटली सुनना बंद हो सकता है. प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन. हम नॉइस पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. टू सेफगार्ड द रिसीवर ऑफ द नॉइस. फॉर दिस टू हैपन, vehicular traffic should be diverted away from dwelling sites. तो बच्चों, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? जहाँ पे vehicular traffic हो उस जगह को डाइवर्ट कर देना चाहिए बिजी एरियाज से. टू रिड्यूस द सोर्स ऑफ नॉइस. नॉइस का जो सोर्स है उसे रिड्यूस कर देना चाहिए. टू पुट चेक्स इन पाथ ऑफ इट्स ट्रांसमिशन. जहाँ से वॉइस ट्रांसमिट हो रही है या नॉइस आ रहा है वहाँ पे हमें चेक्स लगा देने चाहिए. प्रॉपर डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन्स कैन रिड्यूस द डेंजर ऑफ नॉइस पोल्यूशन. बच्चों, अगर मशीन्स को एक प्रॉपर वे में बनाया जाए जिससे वो कम नॉइस प्रोड्यूस करें तो हम अपने आप को नॉइस पोल्यूशन से बचा सकते हैं. एक्वास्टिक फर्निशिंग absorbing techniques should be extensively employed. There should be legal enforcement of restrictions on noise pollution. तो बच्चों, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन कॉज होता है. अगर उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो नॉइस पोल्यूशन कम होगा. थिंक एंड आंसर. बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.